Hello and welcome back to my channel. This is a friendly neighborhood trader Ankan. I hope you are doing well. This is the monthly reading for September 2025. This is a general reading based on collective energy, so it may or may not resonate with you. If it doesn't resonate with you, you can check out the reading for your other signs. If you don't know how to check your other signs, you can check out my previous video on zodiac signs. Link is in the description below. Also, to stick to the end of the video to know your monthly oracle guidance card for this month. And if you're new to the channel, don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell so that you can get notified whenever a new video is uploaded. So let's get on with the reading for Leo or Shing Rashi, Sun Moon Rising for the month of September 2025. So Leo, the energies are very conflicting for you this month. बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कोई चीज़ को लेके आपके अंदर. एट द सेम टाइम आपके पास पोटेंशियल भी बहुत कुछ है चीज़ करने के लिए, चीज़ों को प्रैक्टिकली लाने के लिए आपके पास. ओवरऑल आपका जो थीम है वो है टू ऑफ सोर्ड्स. सो द टू ऑफ सोर्ड्स डजंट गिव यू मच क्लैरिटी. देयर इज अ लैक ऑफ connection between you and the subconscious, your subconscious basically, and this is kind of resulting you to not attain your full potential. जब वो confusion, वो lack of clarity आपके लाइफ से हट जाएगा, तभी आप चीज़ों को easily like manifest कर सकेंगे, क्योंकि the energy that is surrounding you is the magician. So the magician card is about manifestations. So manifest आप तभी कर पाएंगे जब वो confusion clear होगा. So we'll get into this as we go along. Now moving on to the other cards for your career and finances. Good card, a lot of teamwork with the Three of Pentacles, and ये जो आपका टीम वर्क रहेगा लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहेगा, जिसके साथ आप काम करते हो, जिसके साथ आप पढ़ाई करते हो, इफ यू आर ए स्टूडेंट. सो उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, आपके कोवर्कर्स से, आपके क्लासमेट्स से. सो ओवरऑल वेरी गुड एनर्जीज. सक्सेस है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली विथ हार्ड वर्क दिस सक्सेस इज गोना कम, एंड दिस success is also gonna come with the help of other people, like-minded people around you. Now moving on to your love and relationships, very good energies with the Sun card. Also very warm and positive energies. So again, a very strong pregnancy card for many of you. If you guys are trying pregnancy, के बहुत ज़्यादा chances हैं. And if you're single, I see someone coming into life. This is a very warm and happy kind of energy. Like बहुत लोग कहते हैं कि the Sun card is the most happiest and most positive card in the entire tarot deck. And with this in the reading, usually the readings are very positive, very vibrant, very uplifting. So love and relationship wise, good energies, very good energies. अगर कुछ रिजॉल्व होने के लिए था, देयर वर इश्यूज related to your love and relationship with your partner, with your husband or wife, with your spouse basically. Things will be resolved for you this September. Good, very good energies. This card actually kind of makes you happy, makes even me happy seeing this card in the reading. So now moving on to your health. So yeah, you need to take care of your health. चीज़ें अच्छे नहीं हैं आपके लिए इस मंथ हेल्थ रिलेटेड. कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है कि अगेन लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ कंफ्यूजन, आपको लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं है. जो चीज़ें जो चीज़ से आप गुजर रहे हैं, जो इलनेस है आपके पास या जो इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़, आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस. इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकूँगा, या हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा. वो हेल्पलेसनेस वाला फीलिंग जो है वो आपके पास है, आपके आप फील करेंगे उसको इस मंथ. बट द पॉजिटिव साइड टू इज मोस्ट ऑफ दिस फीलिंग इज सेल्फ इम्पोज. आप खुद मेंटली आपके ऊपर थोप दिए हैं काइंड ऑफ ये एनर्जी, बिकॉज देयर इज अ पाथ, देयर इज अ वे आउट ऑफ दिस. यू जस्ट नीड टू लुक अराउंड. आप
जितना भी आप अपने जो कॉन्शियसनेस है उससे कनेक्ट करेंगे, जितना भी आप आपके सबकॉन्शियस से भी कनेक्ट करेंगे और चीज़ों को थोड़ा परखेंगे अच्छे से, चारों तरफ देखेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस, इजीली आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके लिए आप बस थोड़ा कामली, थोड़ा स्ट्रेस कमा के, थोड़ा ठंड रख के चीज़ों को समझिए एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा रिलेटेड टू हेल्थ। नाउ द अदर एनर्जीज इज द लाइक बहुत बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जीज है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं ये मंथ को with the judgment card in the reading. So there is revelations coming here with बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाइक रिवील होंगे, आएंगे आपको, लाइक जो आपको पता नहीं था, जो लाइक वो हो भी सकता है बोल के, तो वैसे टाइप की एनर्जी दिखा रहे हैं कि चीज़ें आपके सामने आएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि लाइक वेदर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप और नॉट। Now the other energies is a very balanced kind of, like I said, a very balanced, a very slow, steady kind of energy is there. आप हड़बड़ी तो नहीं कर रहे ये मंथ, which is a good sign. चीज़ों को आप बहुत अच्छे से स्लोली विद द फ्लो ले जा रहे हैं। देर इज वेरी लाइक प्लानिंग का एक एनर्जी है। यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट व्हाट नेक्स्ट स्टेप टू टेक, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये करने से ठीक होगा कि लाइक अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके ऊपर आप डिसीजन लेंगे। अभी आपने उसके ऊपर कुछ डिसीजन भी नहीं लिया है या कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, बट आई सी यू टेकिंग एक्शन विथ टाइम। बट करेंटली इन दिस मंथ you are very much in the planning phase of things, understanding things and taking things slow, taking the middle ground. कोई भी कुछ भी extremes नहीं कर रहे हैं आप ये month, which is a good sign, like I said. Now the energy that you should focus upon is the Seven of Pentacles. So थोड़ा सा perseverance चाहिए, थोड़ा सा hard work चाहिए और खुद को और ज़्यादा लाइक हल्का सा पुश करने का ज़रूरत है यहाँ पे। आप हार्ड वर्क कर रहे थे, काफ़ी दिनों से ही कर रहे थे कोई चीज़ को लेके, यू आर गिविंग इन अपोर्स इनटू दैट एंड नाउ what you need is just to push yourself a little bit more so that you can finally reap the rewards of that. आप kind of like finish line के थोड़ा आगे आके रुक गए हैं and this could also be a sign for some of you to appreciate all the hard work that you have put in. आपने जितना भी कुछ किया है, जितना भी आपने एफर्ट्स दिया है कोई चीज़ के ऊपर, जो भी चीज़ इससे रिलेटेड है, वो चीज़ को आप अप्रिशिएट कीजिए। आप लाइक खुद को काइंड ऑफ अप्रिशिएट कीजिए कि मैंने इतना कुछ किया है। दिस इज द टाइम टू लाइक फॉर सेल्फ अप्रिसिएशन एज वेल एज टू पुश योरसेल्फ अ लिटिल बिट हार्डर, टू पुश योरसेल्फ अ लिटिल बिट मोर सो दैट यू कैन फाइनली गेट टू द फिनिश लाइन। सो या ओवरऑल गुड एनर्जीज फॉर यू। मैनिफेस्टेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोई चीज़ को लेकर अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी अब लाने की कोशिश कीजिए लाइफ में। वो जब आपके पास वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर मेकिंग थिंग्स हैपन। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल एनर्जीज। अगर वही इफ यू नीड टू गेट सम क्लैरिटी ऑन सम थिंग्स, I can't say what things you need to get clarity on because obviously it's a general reading, but वो clarity जब आपके पास आ जाएगा, very strong action driven card, very strong manifestation card. So good energies for you overall, Leo. So yeah, let's look at what messages or advice is coming for you from the oracle cards this month, Leo. Yeah, true offering. So true offering takes what can be an unbearable cross and returns it to love. So yeah, आपको जो चीज़ आपको लाइक अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो एडवाइस आपके लिए आ रहा है, वो कि आप ऑफर कीजिए यूनिवर्स के लिए। आप कुछ कोई चीज़ कहता है ना कि ऑफर करना, लाइक आपका जो डाउट्स है, जो आपका कंफ्यूजन है लाइफ में, वो चीज़ को आप you push it towards the universe and the universe will provide you answers. The universe will provide you with clarity and
this is the advice for you this month. Offer your confusion, offer yourself, offer your whole lack of clarity. जो चीज को लेके आपको confusion है, offer it towards the universe, push it towards the universe, and the universe will give you more clarity, will give you answers, and this will eventually bring in a lot of positivity with the sun card and the magician card. Very good energies. So मतलब इसको और एक तरीके से आप देख सकते हैं ना कि आप कोई चीज़ है जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, आप छोड़ नहीं रहे हैं. यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग वेरी स्ट्रांगली, यू आर नॉट लेटिंग इट गो, एंड द मोमेंट यू लेट इट गो, लाइक मैनिफेस्टेशन का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो वही है कि यू विजुअलाइज, यू मैनिफेस्ट, एंड देन यू नीड टू लेट इट गो. द मोमेंट यू लेट इट गो, थिंग्स आर गोना कम इनटू योर लाइफ. सो आप इसके विजुअलाइजेशन, लाइक जो विजुअल्स है, इसके जो सिम्बोलिज्म्स है, उसको देखिए, समझिए, आपको वही समझ में आएगा कि कोई चीज़ को आपको छोड़ना है. जो चीज़ आप पकड़ के रखे हैं, मैनिफेस्टेशन का भी हो सकता है, यू नो, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, वो चीज़ को पकड़ के रखें, लेट इट गो, लीव इट, and offer it to the universe, and then things will start to happen. So good energies for you overall here, and that would be all for the reading. If you like the reading, do like the video and leave a comment to claim the reading. Also, don't forget to subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, have a good day and bye.